Hello students, class 9. We have already discussed about nouns that comes in parts of speech. Today we have another discussions of the same topic, related with same topic, and second, after noun in parts of speech there is pronoun, and today we will discuss on that topic. So let's get started. Pronoun. In earlier classes, you have already learned about pronoun. So, to remind you again, I wrote on the board about the description of pronoun. A pronoun is a word used in place of noun. Example: I, he, she, him, whom, whose. You are already familiar about these words because always you come across these type of words in reading, in any story, in any topic. Always you come across these kinds of words. So pronoun is comes in the place of noun, and sometimes oftenly we need pronoun in our day to day life, because always we are not using to denote the person with their names. So हम लोग कभी कभी नाम के बदले में ज़्यादातर हम लोग ये यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑलवेज इट इज़ नॉट गुड टू मेंशन द पर्सनस नेम. अच्छा नहीं होता है. तो दैट्स वाई इट इज़ इजी टू यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, दैट इज प्रोनाउन. So in pronoun, the pronouns are also classified. Some of the words that are given here. So personal pronoun, reflexive and emphatic pronouns. Third, demonstrative pronouns, interrogative pronoun, and fifth, relative pronouns. So these are the main classes of pronoun, and we have the discussion turn by turn on this topic. So personal pronoun, first we will discuss on the personal pronoun. Personal pronoun होता क्या है उसको पहले हम लोग जानेंगे. So personal pronoun are used in place of nouns that name people. They are used for the person speaking, spoken or spoken of. तो यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन कहाँ पे यूज करते हैं? पर्सनल प्रोनाउन दैट मीन्स विच इज पर्सनल, जो व्यक्तिगत रूप में होता है ना. वो कैसा होता है? आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स. नाउन के बदले में तो होता है, लाइक आई सेड ऑलरेडी, इट कम्स प्रोनाउन, इट कम्स इंस्टेड ऑफ नाउन. तो दैट्स वाई नाउन्स दैट नेम पीपल, जो नेम पीपल, दे आर यूज्ड फॉर द पर्सन. ये पर्सन के लिए, उस पर्सन के लिए स्पीकिंग, स्पोकन टू और स्पोकन ऑफ. तो ये स्पीकिंग, पर्सन स्पीकिंग, स्पोकन टू और स्पोकन ऑफ का मतलब क्या है? लेट मी डिस्क्राइब यू, बिकॉज दीज थिंग्स आर स्टैंड इन थ्री वेज. वो पर्सन को तीन उसमें डिवाइड किया गया है. सो स्पीकिंग, स्पोकन टू एंड स्पोकन ऑफ को थ्री पर्सन में डिवाइड किया गया. तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ये फर्स्ट पर्सन होता क्या? व्हाट इज फर्स्ट पर्सन? फर्स्ट पर्सन इज रिफर्स टू द पर्सन स्पीकिंग. फर्स्ट पर्सन उसी को बोला गया है जो व्यक्ति कुछ कह रहा है. तो वो फर्स्ट पर्सन स्पीकिंग प्रोनाउन में किस प्रकार से होता है? सिंगुलर में, सिंगुलर प्रोनाउन, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई, माई, माइन, मी. एंड इन प्लूरल वी, आवर, आवर्स, अस. these are the first person's pronoun. These are the first person's pronouns that is referred to the person speaking. जो आदमी बोल रहा है किसके साथ? with the second persons.
एंड सेकंड पर्सन इज रिफर टू द पर्सन स्पोकन, जिसके साथ फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है, टू द सेकंड पर्सन, जिसके साथ फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड पर्सन। और ये सेकंड पर्सन होता क्या है, सिंगुलर और प्लूरल, यू, योर, योर्स, यू, दीज आर द second person's pronoun. Let's move to the third pronoun. Third, the person or things spoken of. चाहे अब यहाँ second person, there is a discussion. Just suppose there is a discussion between first person speaking to the second person related with something, some topics. और वही कुछ topics क्या है, that is third person. वो थर्ड पर्सन चाहे वो चीज़ के बारे में बात कर रहा हो, चाहे वो किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हो, सो थर्ड पर्सन इज स्टैंड फॉर दैट। तो वो थर्ड पर्सन मेल और फीमेल में सिंगुलर फॉर्म में ही, हिज, हिम, इट इज स्टैंड फॉर, दिस प्रोनाउन इज यूज फॉर मेल, एंड फॉर फीमेल सी, हर, हर। फॉर थिंग्स और एनिमल्स यू कैन यूज प्रोनाउन इट और इट्स, इट or and its plural form its. Now we have plural they, their, theirs, them. These are the pronoun of third, and they, either male or female, all comes under that they. So don't get confused. Okay, there is one note. My, our, your, his, her, its, their. Don't get confused. It's also a pronoun. So, are separately classified as possessive adjective. Are separately classified. इसको अलग से ही इसको बांटा गया. क्यों? Why it is so? Because it's a possessive adjective as noun. यानी कि ये नाउन के रूप में पॉजिटिव एडजेक्टिव है। पॉजिटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है कि किसी में अधिकार को जताना या दिखाने को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव बोलते हैं। तो आर यूज जस्ट आफ्टर देम, यानी कि नाउन के बाद में, नाउन से पहले इस वर्ड का इस्तेमाल, दिस टाइप ऑफ प्रोनाउंस इज यूज्ड। दैट्स व्हाई बिफोर द नाउन, व्हेनेवर सच प्रोनाउंस वर्ड्स विल स्टैंड बिफोर द नाउन, नाउन से पहले अगर आता है तो वो एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो दैट्स व्हाई इट इज रिटन सेपरेटली। ओके, सो इन एन एग्जांपल वी कैन सी दैट, एग्जांपल 1, दिस इज माय पेन। A pen is a noun. See, pen is a common noun, and that's why pen is a common noun. Before the noun there is mine. Before the noun there is mine, and mine is a pronoun, but this pronoun change into possessive adjective. This possessive adjective, it's become a possessive adjective. Why it is so? Because it is telling something that pen is mine. It's not for others. ये दूसरों के लिए नहीं, ये मेरा है. It's mine. That property is mine. ये मेरा है, ये किसी का अधिकार नहीं है। बोलने का मतलब ये पॉजिटिव एडजेक्टिव बता रहा है। तो that's why possessive adjective are written separately. It is our book. ये हमारा किताब है. A book is a common noun, and before the common noun our is there, which is pronoun. But if it is stand like this, if before the noun, if we write our, his, your, our, my, if we will write like this before the noun, then it change into possessive adjective. तो ये क्या बन जाएगा? possessive adjective बन जाएगा। तो that's why ये possessive adjective का मतलब भी, यानी कि किताब की विशेषता बता रहा है कि ये किताब किसका है? हमारा है। और हमारा जो है वो एक आपका अधिकार को भी जता रहा है। तो that's why possessive adjective. Now up to that much it's a personal pronoun.
which we had discussed. Now let's move to the next topic, that is reflective and emphatic pronouns. So what is reflective and emphatic pronoun? Let us find out. Reflective pronoun means it denotes the coming back of an action. Coming back of an action, कोई भी चीज किया गया है फिर दोबारा वो वापस वो एक्शन आपके ऊपर समाप्त होना. That's why we call upon the doers. करने वाले में वो दोबारा वो एक्शन उसके उसमें आ जाता है, वो काम का पूरा होने का बोध उस. Now we have another topic, demonstrative pronouns. What do we understand by demonstrative? Means demonstrate means here they point out some object on things. For example, these, that, these, those. They point out some object. यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए हम सब सच पर्टिकुलर वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है. तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दे पॉइंट आउट सम ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को दर्शाता है. दूर से ही उसको हम लोग पॉइंटिंग आउट कर सकते हैं, उसको दर्शा सकते हैं. तो ये वर्ड्स दिस, दैट, दीज, दोज, इनको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं. तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि एडजेक्टिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये सारे वर्ड सेम होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज. लेकिन इसमें हम लोग कैसे अंतर करना है, दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू टीच यू इन द सेम टॉपिक. सी, दीज आर वुलन ग्लोब्स. अब ये ग्लोब्स को हम लोग को क्या कर रहा है, बता रहा है. किससे? डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड से, जो कि दीज है, इसको दर्शा रहा है. कौन सा है? दीज आर वुलन ग्लोब्स. और ये वुलन ग्लोब्स है, कौन सा वर्ड से हम लोग को दर्शा रहा है, पॉइंटिंग आउट कर रहा है, दीज से. यानी कि वो दिखा रहा है कि बहुत सारे जो ग्लोब्स है ये करके दिखा रहा है. तो ये वुलन ग्लोव्स पॉइंटिंग आउट डायरेक्टली. तो ये पॉइंटिंग आउट वर्ड्स को हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स बोलते हैं. अब यहां पर भी दीज ग्लोव्स आर वुलन. देखो बोथ सेंटेंस यहां पे एक ही है, लेकिन थोड़ा सा डिसिमिलरिटीज है. वो क्या है, ग्लोव्स लास्ट में है, यहां पे ग्लोव्स नजदीक में है. तो यहां पे क्या है, दीज के नजदीक में और दीज के लास्ट में. इसी में से हम लोग वी कैन आइडेंटिफाई वेदर द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. तो कैसे मालूम चलेगा, देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, कैसे बोलने से, दीज आर वुलन ग्लोव्स, ये वुलन ग्लोव्स है. तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस तरह से दिखा रहा है. सेकंड में क्या है, एडजेक्टिव. किस तरह से एडजेक्टिव है करके, कैसे, अगर एडजेक्टिव आप समझ जाओगे तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट अंडरस्टैंड अबाउट द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. तो यहां पे क्या, दीज ग्लोव्स. ग्लोव्स क्या है, इट्स अ कॉमन नाउन. हमेशा याद रखना है कॉमन नाउन. हमेशा एक चीज याद रखना, व्हेनेवर एनी वर्ड्स गेट फॉलोड to the noun words, always that words is stand for the adjective, because it is telling something about the noun, some speciality, and that word is called adjective. और यहाँ पे these क्या है, कॉमन नाउन के साथ आ रहा है, ग्लोव्स. उसके बारे में क्या बता रहा है, these, ये करके डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है. तो ये किसको बुलाया गया, ग्लोव्स को बुलाया गया. तो नाउन ग्लोव्स क्या है, कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन के उसमें कोई भी डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड आता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है. इज दैट क्लियर? दीज आर द, इस तरह से हम लोग को पता करना है. तो सेम थिंग हियर आल्सो. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में देखते हैं. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन you already know about interrogative pronoun because it's a one kind of asking a questions. तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी ये who, whose, whom, which, what. अब ये भी प्रोनाउन है, लेकिन sometimes these pronouns become a adjective. ये भी एडजेक्टिव में कन्वर्ट होता है. कैसे बोलने से, इन एग्जाम्पल यू कैन सी इन एग्जाम्पल, व्हाट इज योर प्लान. व्हाट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव इंट्रोगेटिव वर्ड.
विच इज ऑल्सो है इंट्रोगेटिव वर्ड। अब यहाँ पे व्हाट इज योर प्लान, व्हाट इज योर प्लान। अब यहाँ पे कोई भी नाउन फॉर्म इसके नज़दीक में नहीं है, ये थोड़ा सा आफ्टर द एक्सिलरी वर्ब के बाद है। तो डेट मीन्स व्हाट इज योर प्लान, ये डायरेक्टली ये प्लान के बारे में, इट इज आस्किंग समथिंग अबाउट द प्लान। एंड देयर इज योर, योर क्या हो गया आपका, आपका, यानी कि पॉजिटिव वो है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे जो वाट है हम लोग का, वाट, ये वाट इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, लेकिन ये नाउन के साथ में नहीं है। दैट्स वाई वाट इज स्टैंड फॉर द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और विच क्या है, विच ट्रेन इज लेट, यहाँ पे ट्रेन क्या है, कॉमन नाउन के रूप में। दैट्स वाई ट्रेन के साथ जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स यूज किया गया प्रोनाउन, तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किस में चेंज हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में, बिकॉज देयर इज कॉमन नाउन। तो इसीलिए ये इस तरह से हम लोग का क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये कॉमन नाउन होने के कारण से ये डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि सॉरी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या बन गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होकर वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, बिकॉज देयर इज सब्जेक्ट बिफोर, आफ्टर दैट देयर इज सब्जेक्ट, विच के बाद सब्जेक्ट होने के कारण से। कौन सा सब्जेक्ट, कॉमन नाउन। तो नाउ अनदर टॉपिक, रिलेटिव प्रोनाउंस। हु इज यूज्ड फॉर पर्सन, as you know that basically who is used for person and which is basically used for animals or things. So relative pronouns, that, who, which, that, these are the words that we are used relative pronoun in a relative pronouns form. So there are the words relate to some words going before. How do we use relative pronoun in a sentence, how it comes on, it's a part of sentence also we can say relative pronouns में हम लोग कैसे यूज करते हैं relative. These are the words that relate to some words going before. ये शब्द who, which, that है ना, these all are relate words to some words going before. बोलने का मतलब इन सेंटेंस के बीच में ये शब्द है जो उनके बीच में आते, तो उन शब्दों के बीच में आगे आने वाले शब्द गोइंग बिफोर को हम लोग एंटेसीडेंट बोलते हैं। तो ये एंटेसीडेंट कैसे, इट ऑल्सो ज्वाइन सेंटेंस, ये क्या करता है, दीज वर्ड्स हेल्प्स टू ज्वाइन द सेंटेंस, और वी कैन से दैट इट्स पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, जैसे लाइक कंजक्शन, हाउ इट्स प्ले रोल द कंजक्शन वर्ड्स टू ज्वाइन द सेंटेंस, उसी प्रकार से सिमिलरली ये भी रिलेटिव प्रोनाउंस भी काम करता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल वी कैन सी द मैन हु गेव यू दिस न्यूज। अब द मैन हु गेव दिस न्यूज, अब यहाँ पे द मैन हु गेव दिस न्यूज, अब ये द मैन क्या हो गया, एंटासीडेंट एक्सक्यूज मी, एंटासीडेंट हुआ, क्यों बोलने से, बिकॉज हु इज गेव यू दिस न्यूज, किसने ये न्यूज दिया, बेसिकली द मैन, और द मैन इज ए एंटासीडेंट ऑफ हु, यानी कि हु का एंटासीडेंट कौन है, द मैन। सो वी कैन से दैट हु is the man. So directly you can say that the man gave you this news. That's why we can say that the man is an antecedent of who. Up next one, this is the book which you have been looking for. Up this is the book, कौन सा book, which book, this is the book which, this is the book which, this is the book is the antecedent of which, and that's why this is the book you have been looking for. That's why which, अब यहाँ पे क्या है, ये एक सेंटेंस हो गया, this is the book you have been looking for, this is the another sentence, और ये दोनों सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है, which जोड़ रहा है, and which is
playing a role as a of the antecedent of, this is the book of the antecedent of which, तो ये प्ले रोल कर रहा है. सो रिलेटिव प्रोनाउन इज ऑल्सो प्ले द रोल जस्ट लाइक कंजंक्शंस. सो this is this much for today. See you in the next video. Take care.